Hello students, welcome back to another lecture of physics. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था एट एक्सेस. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged rod at equatorial position. At equatorial position. कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और मिडिल पोजीशन पे, कुछ इस पोजीशन पे आपको इस पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रॉड के वजह से पोटेंशियल निकालना है. मान लो जो ये डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस इज आर, ठीक है, एंड इट्स एट द मिडिल पॉइंट. इफ दिस whole length of the rod is L, this part would be L by 2 and this part would be L by 2, right? यहाँ पे आपको potential निकालना है. Now what I'll do is I'll take a small element dx from x distance from the center, x distance from the center. उसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो you know this is r, this is x, so this has to be अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट. और यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी डी क्यू. नाउ डी क्यू इज क्यू बाई एल टाइम्स डी एक्स, वेर क्यू बाई एल, यू नो दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल डी एक्स, राइट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो, सॉरी लेट मी राइट डी वी. The small potential is K dq by under root of r square plus x square. Under root of r square plus x square, right? If I substitute and integrate, this, what I'll get? K q by L dx upon under root of r square plus x square. Under root of r square plus x square. So this, if I integrate v, what I'll get? kq upon L integral dx upon under root of r square plus x square. See, right now I'm not substituting this limit. Limit can be minus L by 2 to L by 2. If I consider that this side as minus L by 2 and this side is positive L by 2, if I substitute the limit, I would get it, ठीक है. पर मैं अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, अभी मेरे को पहले इसको इंटीग्रेट करके फिर मैं लिमिट डालूंगा. तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल पुट x इज इक्वल टू r tan theta. आई विल पुट x इज इक्वल टू r tan theta. एंड इफ आई डिफरेंशिएट, आई विल गेट dx इज इक्वल टू r sec square theta d theta. Differentiation of tan theta is sec square theta, right? Now if I substitute here, well, I'll take in another page. What I got is v is equal to k q upon L integral dx upon under root of r square plus x square. So what I did, I put x is equal to r tan theta, and if I differentiate, I'll get dx is equal to r sec square theta d theta, ठीक है. So what I'll get, v is equal to kq upon L integral, if I substitute dx, that is r sec square theta d theta, and if I put here, what I'll get r square plus r square tan square theta 1 by 2, right? So if I'll integrate this, if I substitute everything, your r will get cancelled and only remaining will be sec theta d theta. So integral of sec theta is ln sec theta plus tan theta.
integral of sec theta is ln sec theta plus tan theta. Now I need to substitute what is sec theta and tan theta. You have put x is equal to r tan theta, and if I draw a small triangle here, if x by r, that means this x by r is tan theta. So this would be under root of r square plus x square, right? So sec theta is under root of r square plus x square upon r, and tan theta is x by r. So if I write v is equal to kq upon L is under root of r square plus x square upon r plus x upon r, right? And this limit has to be from, I said, the minus L by 2 to L by 2, minus L by 2 to L by 2, right? If I substitute v is equal to kq upon L, so this would be ln, if I substitute r square plus L square by 4, right, plus L by 2, here would be r, right, and if I break it minus ln, let me put another bracket, right, ln under root of r square plus L square by 4 minus L by 2 r, right, L by 2 r. So this is ln a minus ln b. So आप आप logarithmic पढ़ा होगा, LA मतलब log of a minus log of b is log of a by v. So what you'll get, kq upon L, what I'll get here, I'm directly writing it, you can do it, right? So this is 4r square plus L square plus L upon under root of 4r square plus L square minus L. If you do this, you would get it. If you do this, you would get it, right? Right? So this is V is equal to KQ. This is the electric potential at the equatorial. Electric potential at the equatorial. Clear? Right. Now, we are going to learn about equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Equipotential surfaces, the name itself suggests कि भाई जो potential रहेगा उस surface पे वो same रहेगा. That is known as equipotential surface. For example, मान लो कि आपके पास कोई चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है. You know the potential. What is potential? K Q upon R. K Q upon R is the potential, right? अब आप चाहे कोई भी डायरेक्शन में आप लो तो आप देखोगे कि R रेडियस पे एक स्पेरिकल लोसाई बन जाएगा, जहाँ पे सारे सरफेसेस पे आपका जो पोटेंशियल रहेगा, ये सारे पॉइंट्स पे जो आपका पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा. दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? और आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इक्विपोटेंशियल के सरफेस से. देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने समझाया था पहले, ठीक है. हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ये समझना है. इक्विपोटेंशियल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल मीन्स दैट सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज सेम. आप अगर देखोगे यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट है VA, मान लो ये पॉइंट है VB, मान लो ये पॉइंट है VC, ये पॉइंट है VD. तो देखो VA, VB, VC, VD सभी के सभी जो पोटेंशियल हैं वो सेम है. सभी के सभी जो पोटेंशियल हैं वो सेम है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा. एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी मैं कह रहा था. नोट इज दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field for that matter, the direction of electric field is perpendicular
perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface. Try to understand this. बहुत important है, बहुत important है. मान लो कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मतलब जो मूवमेंट होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होगा. लेकिन मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं, और इस मान लो कि ये पॉइंट VA है और ये पॉइंट VB है. ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऑब्वियस दिस VA एंड VB आर एट सेम पोटेंशियल. दिस VAB एंड VB आर द सेम पोटेंशियल. मतलब ये यहाँ पे अगर एक प्लेन में बना दूं तो दिस इनसाइड द प्लेन you have same potential. Points are at the same potential. So VA and VB here are at the same potential. Now this surface is known as equipotential surface. ये जो surface बनेगा that is your equipotential surface. I hope you understand here. So VA is equal to VB. VA is equal to VB in this case. So I think you got the clear idea about electric potential. Right? Let's move to another topic. Very important topic. बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है, राइट. और इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी टीडियस है, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने को डील करना है. द टॉपिक इज डाइपोल. Now what do you mean by dipole? A system of two opposite and equal charges. Two opposite and equal charges separated by a small distance. एक छोटे से डिस्टेंस में अगर वो सेपरेट होता है तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ -Q चार्ज यहाँ पे है और एक छोटा सा सेपरेशन है +Q चार्ज, और डिस्टेंस मान लेता हूँ कि D है या 2L है, कोई भी मान सकते हैं, मैं 2L ले लेता हूँ. 2L क्यों? बिकॉज मिड पे मेरा L हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 2L ले लिया. ठीक है, ये 2L बहुत छोटा है. इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है. इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, राइट. तो डिस्प्लेस होने के कारण बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज वहां पे आ जाती है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा पता करनी होगी, उसके द्वारा पोटेंशियल कितना होता है वो पता करना होगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में, राइट. सो दिस डाइपोल आपको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना है. इस डाइपोल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of dipole is dipole moment. Dipole moment जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है. वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इस केस में अगर Q लिखूं मैं, इस केस में अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो Q टाइम्स 2L, दैट मीन्स 2QL. अगर मैं 2L की जगह D लिख रहा होता तो QD होता. ठीक है, मैंने अभी कहा इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही कहा तो इसका डायरेक्शन होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम डाइपोल मोमेंट. द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट would be from negative charge to the positive charge. बहुत इंपॉर्टेंट है.
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में ये मूव करेगा। आई होप कि डाइपोल के बारे में चीज़ें काफ़ी आपको क्लियर हो चुकी है, राइट? अब धीरे धीरे करके हम इसके बारे में और स्टडीज करने वाले हैं, ठीक है? दूसरे लेक्चर में आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू।